Can you show a thumbs up if you can hear me? Perfect, perfect. So I think we can just wait for 2 minutes and then we can start. Yeah. So I think we can start as more people join in, right? Um, so firstly, what is this ESM, right? And anyone who had those 36 companies, right? They would have been impacted by ESM today, and you would have seen that some of your securities are not eligible for trading anymore, right? So I can share the names of those 36 securities. It's also there in my timeline. So I think we can first discuss what is ESM and what it is impacting currently, right? And what's the rationale behind this framework. So ESM is extended surveillance mechanism, and to control pump and dump, SEBI has come up with this framework, and the intent behind is to curb pump and dump. ठीक है, तो pump and dump को रोकने के लिए किया गया है. The problem is that uh, in order to curtail pump and dump, it is also impacting a lot of good securities. Firstly, what it impacts? It impacts only main board companies. It does not impact SME companies. So if you are playing in SMEs, right? If you only invest in small and medium enterprises, SME companies, or the SME board, this rule will not be impacting those companies. So that's the first thing. It is only impacting main board companies with market cap less than 500 crore. तो अगर 500 करोड़ से छोटी कंपनी है तो ही ये इफेक्ट होगा, इस पे इफेक्ट आएगा, उसका मतलब इस फ्रेमवर्क का उस कंपनी पे इफेक्ट आएगा. Otherwise, it will not be impacting any other company which is more than 500 crore. So less than 500 crore main board companies are the ones which are impacted. Okay, so that is one thing which is clear. No impact on companies above 500 crores and no impact on SME companies. And I hope I am able I'm everyone is able to hear me, right? मैं सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, right? Perfect, perfect. So 500 करोड़ से छोटी मेन बोर्ड कंपनीज पे इफेक्ट आएगा. पहली बात ही हम समझ गए. दूसरा ये है क्या, इससे इसमें मतलब इसमें आने से क्या होता है, ठीक है? इसके दो स्टेज हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. In stage 1, to come into stage 1 there are two criteria. The first criteria is कि इधर जो कंपनी के टॉप और मिनिमम है ना, हाई और लो है, हाई और लो का वेरिएशन बहुत ज्यादा होना चाहिए. एंड उन्होंने 3 महीने के लिए एक नंबर स्पेसिफाई किया है, 6 महीने के लिए किया है, 12 महीने के लिए किया है. स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ 3, 6 and 9 months. If the high low variation is very very high, you get put into stage 1. Okay. The second thing is, if you rise a lot in a given time frame, अगर आप 3 महीने में 50% से बढ़ गए, 6 महीने में 75% एंड 12 months में 100% से बढ़ गए, then you again get put into stage 1. And that is why you would have seen there are 283 companies which are into stage 1. अब प्रॉब्लम क्या है कि द क्राइटेरिया इज प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, कि अगर प्राइस बढ़ गया तो आपको स्टेज 1 में डाल देंगे, विदाउट सेइंग कि भाई वो जेन्युइन कंपनी है कि वो खराब कंपनी, राइट? अब ऑब्वियसली इट इज आल्सो डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू टेल कि क्या जेन्युइन क्या खराब. देयरफॉर दिस इज द रैशनल कि भाई जो भी बढ़ता है
उस सबको हम रोक देंगे, ठीक है। इट्स अ ब्लैंकेट काइंड ऑफ अ थिंग कि जो ऊपर जा रहा है उसको हम ऊपर जाने नहीं देंगे, हम उसको रोक देंगे। सो इट इज ऑलमोस्ट स्लोइंग डाउन एनी राइसिंग कंपनी जो भी मेन बोर्ड पे है और लेस देन 500 करोड़ है। स्टेज वन में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ। स्टेज वन में क्या होगा कि उन्होंने बोल रखा है कि स्टेज वन में आपका T2T सेटलमेंट रहेगा और आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। आप पूरा पैसा दो और सिक्योरिटी ले लो, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करने देंगे, पैसा दो सिक्योरिटी ले जाओ, ठीक है। तो उसमें वो सारा स्पेकुलेशन पूरा बंद कर देते हैं कि कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा। और सर्किट या 5% रहेगा, और अगर आप बाई चांस 2% पे हो तो 2% रहेगा। तो स्टेज वन इज नॉट अ प्रॉब्लम, 283 सिक्योरिटीज स्टेज वन में है। अब प्रॉब्लम क्या, अगर आप स्टेज वन में आ गए और स्टेज वन के बाद आपका प्राइस राइज फिर से नहीं रुकता है, तो आप आ जाओगे स्टेज टू में, विच इज इफेक्टिवली जेल। स्टेज टू में क्या होगा कि आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी मंडे टू मंडे, यू विल बी ओनली एबल टू, योर स्क्रिप्ट ओनली विल गेट ट्रेडेड एवरी मंडे, एंड आपका सर्किट हो जाएगा 2%, ठीक है। तो 2% का सर्किट हो जाएगा अगर आप स्टेज टू में आ गए, और मंडे टू मंडे ट्रेडिंग होगी। और स्टेज टू में आप कैसे आओगे, अगर आप स्टेज वन के अंदर हो और आपके अब ऊपर लगातार 3 सर्किट लग गए, 15-20% की कंपनी ऊपर चली गई एक हफ्ते के अंदर, तो आप स्टेज टू में आ जाओगे। और अगर महीने में 30% से ऊपर चली गई तो आप स्टेज टू में आ जाओगे, ठीक है। सो दैट्स द क्राइटेरिया, हफ्ते में 15% आई थिंक, एंड महीने में 30%। इफ यू राइज बियॉन्ड दैट यू कम इन टू स्टेज टू। एक बार आप स्टेज टू में आ गए तो फिर सब गेम ओवर, देन ट्रेडिंग गेट स्टॉप, मंडे टू मंडे ट्रेडिंग, एंड 2-2% का सर्किट। तो उसके बाद तो प्राइस राइज होना आपका खत्म ही हो गया, कि अब तो प्राइस राइज होगा ही नहीं। इनफैक्ट स्टेज टू में आ गए तो प्राइस रुक जाएगा या फॉल ही करेगा, क्योंकि जो भी फंस गया, जिसका पैसा फंस गया, वो पैसा निकालने का कोशिश करेगा। तो मंडे वही होगा, कुछ स्क्रिप्ट पे लोअर सर्किट लगेंगे 2-2% के, कि भाई। और प्रॉब्लम क्या है कि उसकी ट्रेडिंग ही आपने एक दिन का रखी है और 2% का सर्किट है, तो स्टॉक इफेक्टिवली वहीं का वहीं रुक जाएगा। फिर वो एक महीने तक रिव्यू करेंगे कि देखो सर स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। अगर स्टॉक रुक गया तो वो उसको वापस स्टेज वन में लेंगे, एंड अज्यूम होप करेंगे कि स्टेज वन से वापस स्टेज टू में ना आए। अगर स्टेज वन में आने के बाद फिर से प्राइस राइज हुआ तो फिर से स्टेज टू में आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है। द इंटेंट इज कि प्राइस को बढ़ने नहीं देना है। प्राइस अगर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है तो प्राइस एक्शन रुक जाए। इससे क्या होता है, जो पंप एंड डंप कंपनीज है वो तो इफेक्ट होंगी ऑब्वियसली, मतलब स्टॉक प्राइस ही बढ़ा नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली पंप एंड डंप के चांसेस कम हो जाते हैं। द प्रॉब्लम इज कि जो अच्छी कंपनियां भी हैं, एंड दिस इज इंडियाज डेकेड राइट, देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज, तो उनका भी प्राइस का जो एक्शन है और जो उनका प्राइस ऊपर जाता था, एंड हमारा तो, हम लोग तो सारे माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हियर डू माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग, एंड द ओनली इंटेंट बिहाइंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग इज टू गेट मल्टी बैगर्स, राइट। तो आपके मल्टी बैगर बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इफेक्टिवली जो कंपनी, अगर कंपनी सेबी के रूल्स के हिसाब से ऊपर नहीं गई, विच इज लाइक हफ्ते में 20% से कम और महीने में 30% से कम, तो वो स्टेज टू में चला जाएगा, एंड देन स्टॉक रुक जाएगा, right? So this is the entire mechanism. The intent is to curb price rise or swift price rise, I would say, and and the main intent behind is to curb pump and dump. Now the implication for us is that one thing कि इससे एक नेचुरल जो लॉजिक निकलता है कि यार अगर आप को कोई कंपनी 500 करोड़ से छोटी मेन बोर्ड पे दिख रही है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि वो कहाँ पे बैठी है। अगर वो बहुत छोटी कंपनी है तो मोस्ट लाइकली उसका प्राइस एक्शन तो रुक जाएगा, क्योंकि इतना कंट्रोल प्राइस एक्शन तो आएगा नहीं, तो मोस्ट लाइकली वहां पे मल्टी बैगर निकल बनने बंद हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे काफी, क्योंकि एटलीस्ट मेरा जो गेस है कि भाई वहां पे प्राइस बार बार आपका रुकता रहेगा स्टेज टू में आने की वजह से। इससे प्रमोटर्स के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी को प्रेफरेंशियल करना है, उसकी अच्छी कंपनी है, तो बेचारा फंस गया कि भाई अभी प्रेफरेंशियल करना है और कंपनी छोटी है तो कंपनी बड़ी नहीं होगी, या तो मैं खराब वैल्यूएशन में प्रेफरेंशियल करूं, और खराब वैल्यूएशन में कोई प्रेफरेंशियल करता नहीं है। तो इससे क्या होगा, छोटी कंपनी के प्रमोटर जो है उनको भी दिक्कत आनी होगी, मेरे हिसाब से उनको दिक्कत होगा थोड़ा कि वो प्रेफरेंशियल कर नहीं पाएंगे इजीली, क्योंकि वो बार बार स्टेज टू में फंस जाएंगे, उनका प्राइस राइज होगा नहीं, और एक बार वो स्टेज टू में फंस गए, प्राइस राइज हुआ नहीं, लो वैल्यूएशन में प्रेफरेंशियल करना नहीं चाहेंगे। तो ये इंप्लीकेशन निकलता है फॉर द प्रमोटर्स। हमारे लिए निकलता है कि देखो, हम हमारे लिए जो फ्रेश पोजीशंस है लेस देन, अब अगर आपकी कंपनी 300 करोड़ की है, तो 300 करोड़ में क्या है कि प्राइस एक्शन आया तो वो 500 से ऊपर पहुंच जाएगी, इससे पहले कि उसमें फ्रेमवर्क लगे। तो 300 करोड़ तक की कंपनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कंपनी 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ की है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि स्विफ्ट प्राइस एक्शन के बाद वो स्टॉक रुक जाएगा, which is not a matlab, it's not a good thing for the company, because and it is not a good thing for us as well, because
a lot of multi-baggers also get stopped while the pump and dump companies get stopped, right? तो pump and dump तो clearly से कम हो जाएगा, एंड पंप एंड डंप होगा तो 500 करोड़ से ऊपर रैम्पेंट रहेगा, क्योंकि 500 करोड़ का लिमिट है। 500 करोड़ से नीचे तो पंप एंड डंप थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा इस फ्रेमवर्क में। बट हमारे जो मल्टी बैगर होते हैं वो भी इसमें कंट्रोल हो जाएंगे, एंड उसमें भी हम सब लोग को काफी इशू आएगा। तो एक ये करोलरी है कि भाई 300 करोड़ से छोटी कंपनीज में प्राइस एक्शन बहुत कर्टेल होगा, एंड पीपल विल नॉट show a lot of interest in those companies, right? So that is one implication. So any thoughts from anyone so far? I can listen, we can listen to more people right now, and then we can continue the discussion. But I have some more thoughts also here, how to make, and ideally there should be a PE criteria to this rule as well, because अगर low PE company है तो वो तो चलनी चाहिए, it is a good company mostly, right? तो ideally इस rule में there should be a PE criteria, which I feel they SEBI and the regulators can implement a PE criteria, because that will really help. Blanket ban on small companies or blanket price action on small companies will affect good companies also. It will also impact growth for small promoters, and उनको preferential और ये सब होना उनके लिए भी दिक्कत रहेगा। तो I strongly feel कि PE criteria होना चाहिए इस rule में। Of course अभी नहीं है, but होना चाहिए, and I would actually, if there's some way for us to communicate to regulators, right, we would, मतलब अगर कोई पी क्राइटेरिया लगा दे कि 100 के ऊपर पी पे ये रूल लग जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि 100 के ऊपर पी मोस्ट लाइकली मल्टीबैगर होगा नहीं, तो और मोस्ट लाइकली वहां पे पंप एंड डंप ज्यादा रैम्पेंट होगा, तो वो ये रूल काफी अच्छा बन जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग रूल बन जाता है। अगर आप 100 के पी का क्राइटेरिया नहीं लगाते हो तो फिर मल्टीबैगर भी इसमें हम सबके रुकेंगे, एंड इफेक्टिवली लेस देन 300 करोड़ इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट एनीमोर। जिसका ऑलरेडी पैसा लगा है उसमें पता नहीं कैसे एक्शन होगा, क्योंकि वो स्टेज 2 में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करेगा, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अभी आप देखोगे काफी स्टेज 2 कंपनीज, स्टेज 1 कंपनीज नीचे आ रही हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगी तो बेचारी फंस जाएंगी। तो वही है कि अभी थोड़ा सा ट्रिकी जोन है कि जिसका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है उसका क्या होगा, उस पैसे का पैसा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, वो मुझे भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं है। एनीवन हु हैज मोर थॉट्स, राइट, वी कैन टेक थॉट्स ऑफ मोर पीपल and then sort of discuss forward. Hi Hey, Aditya Himanshu. bhai. Hello everyone. Good evening. Good evening. Aditya, face of it, this is very very discouraging. जैसे आप बता रहे हैं तो ये बहुत ही discouraging लग रहा है मेरे को तो, because I do hold a company which is like below 100 crore also, but उसका PE बहुत कम है. So PE should be a criteria as you mentioned. So I'm talking about Edmensuva. So I was hoping कि और उसमें अभी recently there is some momentum in that from 3-4 days. तो अभी तो I mean, can we unite or can we raise a request to SEBI or the exchanges? Can anything be done? Yeah, this is final. That was my question. Aditya. Sorry. I think I was talking on mute. So what I was saying was कि मतलब ideally there should be some way for us to try to speak to SEBI and communicate our thoughts, right? Because everyone gets impacted. All 208 people on the call, and I'm sure India is a big country, right? There's so many people who invest in microcaps. So all of us get impacted. The promoters get impacted, right? Small companies में क्या होगा, अभी interest इन्वेस्टर इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा, वहां पे प्राइस एक्शन होने कम हो जाएंगे, वो प्रमोटर को प्रेफरेंशियल लाना होगा तो एक साल वेट करेगा। सो इट इज
tough rule. I think the intent is right. Pump and dump curb, it should be curbed, but it at the same time we should find a way to not let the good companies suffer, right? Because at this point of time, a lot of sectors are at inflection points, and a lot of companies are witnessing fast growth. So we should not we should try to find a middle ground. कि भाई pump and dump भी curb हो जाए and good companies don't suffer. I do strongly feel P is the criteria, and I do feel that we should try some way, if there is some journalist on the call or someone who has a regulatory connects, right, they should share our thoughts with the, and we can discuss more. I'm not saying that this is one way which I thought that P criteria should be there, but I'm happy to get more thoughts from other people on the call, what they are thinking and any other way they find they can make the rule better. So would be good to listen from other people if they have any thoughts and how they are thinking about this. Yeah, anyone else who would like to speak? Hello. Yeah. Hello. So Aditya, we can do one thing. We can pass this message to CNBC Awaaz team. We have a Neeraj Bajpai or Anuj Singhal, and they can pass this message to SEBI on the news. This is the one way we can do it. So because news channel will listen everybody. Right. We should try. If there is some journalist on the call, I think please do come up on the speaker panel. Because I think we should there should be some way to sort of raise this, right? Ki bhai, how do we it is also impacting good companies and impacting a lot of investors across India, right? And अभी क्या होगा, अभी तो लोग के पैसे भी फंसेंगे. जैसे मेरा तो Chemtech चला गया, तो I had like a good chunk in that company, right? तो मेरा पैसा तो फंस गया अभी. हाँ, तो मेरा पैसा फंस गया 1 महीने के लिए. 1 महीने बाद वो अभी क्या हुआ, उस पे लगेंगे 4 लोअर सर्किट, मंडे को लगेंगे, मंडे टू मंडे 4 लोअर सर्किट. 1 महीने बाद हम उसको 43 पे देखेंगे. 1 महीने बाद वो निकलेगा ESM से, फिर क्या होगा, 1-2 लोअर सर्किट और लगेंगे और फिर वो वहीं पे घूमेगा. तो हम सबका बेसिकली क्या है कि वो कंपनी भले ठीक ठाक हो, उसमें अप्रिसिएशन के चांस कम हो गए हैं. एंड अनलेस वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में ऊपर जाए, वहां पे तो पैसा फंसा रहेगा, निकलने में भी दिक्कत आएगा. तो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज. एंड अभी तो 36 गई हैं और जाएंगी. अगर प्राइस एक्शन नहीं रुका तो और कंपनी जाएंगी. एक वो स्ट्री पेस्ट्रॉनिक्स है, वो भी अच्छी कंपनी, वो भी चली गई, उसमें भी पैसा फंस गया लोग का. तो ये प्रॉब्लम है. लॉट ऑफ मनी विल गेट स्टक इन दीज कंपनीज एज वेल. So I do feel that we should tell this to CNBC or ET team, and if they can sort of broadcast it, it would be really helpful for everyone on the call. If there is some journalist who is listening, who is on the space side, please do come up. Would be great to sort of share our thoughts in more detail with you, and then you can help if someone is listening. Aditya, I have one more quick things. औरंगाबाद डिस्टिलरी लिमिटेड, उसका प्राइस क्यों चेंज नहीं हो रहा? मैंने 3 वेबसाइट पे देखा, स्क्रीनर पे, ICICI डायरेक्ट पे. उसमें ट्रेडिंग ही बंद है. उसमें ट्रेडिंग बंद है, कोई बेचता ही नहीं है. ना कोई बेचता है, ना खरीदने के लिए बहुत लोग रहते हैं, कोई बेचता ही नहीं है. अब कोई बेचेगा ही नहीं तो ट्रेड होगा ही नहीं. अच्छा, इसीलिए स्टॉक क्योंकि चेंज होता ही नहीं है, तो अभी उसको कोई बेचता नहीं है ना, कोई बेचता ही नहीं है. तो अभी इसके लिए बाय कर ही नहीं सकते, ऐसा रहता है क्या? हाँ, अब कोई बेचेगा ही नहीं तो अब बाय क्या करोगे? तो कुछ उसमें ट्रैक्शन ही नहीं है. तो वो तो होता है, बहुत कंपनीज में होता है कि बाइंग रुक जाती है. काफी बार ऐसा होता है. तो उसमें सेलिंग रुक चुकी है, तो सेलिंग रुक गई है, अभी उसमें कुछ नहीं हो सकता. तो वो तो ठीक है, वो तो अलग चीज है. आई थिंक ESM इज अ बिगर प्रॉब्लम. वो तो ठीक है, वो तो प्राइस, वो तो मार्केट फोर्सेस है कि कोई बेचना नहीं चाहता तो चलेगा. बट यहाँ पे क्या है, हमारे पैसे फंसेंगे लोग के. अभी मेरा तो फंस गया है इसमें. इट्स फाइन, कोई डरने वाली बात नहीं है, निकल जाएगा पैसा. अभी 1 महीना रुकेंगे, वो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. अनलेस आपका इमरजेंसी फंड था तो आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि अब वो पैसा बाई चांस 36 में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो दिक्कत आएगा. बट कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है. 1 महीने 1.5 महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा. बट ये है कि भाई वहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल भी कम हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में ऑब्वियसली पूरा मार्केट में फैल जाएगा, तो सब लोग 300 करोड़ से छोटी कंपनियों में पैसा डालना कम सोचेंगे, भाई यहाँ पे नहीं डालते, बाकी जगह डालने का कोशिश करते हैं. तो उन प्रमोटर को तो बहुत नुकसान होने वाला है अगर वो इनके ग्रोथ प्लान्स थे तो. हेलो आदित्य भाई, विजय बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए विजय, बोलिए. सर, ये जो स्पेशल सिचुएशन होती है प्रमोटर चेंज वाली, उसके अंदर भी काफी कंपनियां जैसे इसमें आ गई है. पहले इसमें SG फिनसर में भी ऐसा ही हुआ था सर, जो सो मूंगी पाती, तो उसमें भी GSM में था, मंडे टू मंडे होता था. पर कोई आप जो कह रहे लोअर सर्किट, लगता है कहीं अच्छी कंपनी तो ये प्राइस मूवमेंट नहीं होता, लेकिन बाहर ही खड़े रहते हैं हर बार. ऐसा भी तो होता है सर, जरूरी नहीं कि लोअर सर्किट लगे सर. हाँ, बट इसमें ये है ना कि मुंगीपा कभी तो निकला ना उससे. यहाँ पे 2-2%, अगर आप पूरा साल भी 2-2% लेते रहोगे, इतना स्ट्रांग होगा नहीं.
तो पूरा साल भी 2-2 मतलब ऐसा हो सकता है जो आप बोल रहे हो, ऐसा भी होगा कि कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो 2-2% से चलेगी, बट फिर वही नहीं ना भाई, मूंगी हाँ पा के अंदर ये हुआ था जब एसडी फिंसर वालों ने लिया था, हाँ वो भी चला गया था SM 4 स्टेज में चला गया था। उसमें हाँ ट्रेड मतलब एक्चुअली ये होता था कि एक बायर तो पूरे रहते थे उसके अंदर, बायर फुल रहते थे, पर वो कभी लोअर सर्किट पे नहीं गया। वो 150 शेयरों का काम होता गया मंडे टू मंडे, और पर वो धीरे धीरे उन्होंने प्रिफरेंशियल लाके उन्होंने अपना इक्विटी बढ़ा के फिर उसको उससे निकाल दिया था। तो जो स्पेशल सिचुएशन होती है उसके अंदर ऐसा हो सकता है ना सर, ये लोग जैसे 200-250 करोड़ की कोई कंपनी है, उसके अंदर प्रिफरेंशियल खुद ही रेस करके उसको निकाल सकते हैं ना उसमें से। अब प्रेफरेंशियल रेस करके अच्छा बोल रहे हो कि प्रेफरेंशियल रेस कर दो तो इक्विटी कैपिटल बढ़ा दिया, ये कर रहे हो ना, इससे हाँ इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगी, बट वो तो हाँ प्रेफरेंशियल की लिस्टिंग होने में बढ़ेगी ना इवेंचुअली। और आई थिंक मुंगीपा में क्या था, उन्होंने बहुत सारा पैसा डाल दिया था एक साथ, तो एकदम बढ़ गया हाँ, था। वही हाँ वही तो वही वही मैं कह रहा हूँ, इतना सारा वही पैसा मैं भी कह मतलब वो एक रेयर केस है ना, हर कंपनी कर नहीं पाएगी, मतलब जो मुंगीपा में हुआ था मुझे नहीं लगता हर कंपनी कर पाएगी, कर सकते हो सर। बट सोमदत्त फाइनेंस है, उसके अंदर किम्स वाले प्रमोटर है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ इज अ बट बिग प्रमोटर, इज अ बिग प्रमोटर। हाँ बट वही अनसर्टेनिटी है ना, मतलब सी एक आध बंदा तो कर भी जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज बाकी जो अभी है 36 और 283 स्टेज 1 के अंदर है, वो 283 यस के में से कुछ जाएंगे स्टेज 2 में। चलो ठीक है, आपने जो एक आध केस बोला उसमें हो जाएगा ऐसा कि भाई प्रेफरेंशियल आ गया, अब मुझे नहीं पता एंड मुझे मालूम है मुंगीपा में ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है, बट हाँ हर बंदा तो प्रेफरेंशियल भी नहीं ला पाएगा ना, तो जो बेचारा 35 करोड़ की कंपनी है जो सोच रहा था कि हाँ, मैं 100 वो करोड़ नहीं पे कर लाऊंगा, वो कहाँ से लाएगा ना, सकते। तो अब वही है, वो तो फंस गए ना नहीं, सारे। मेरा क्वेश्चन तो एक ये है कि जरूरी थोड़ी कि उसको लोअर सर्किट पे रहे, वो नॉर्मल भी रह सकता है ना, प्राइस चेंज ही नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर अच्छी कंपनी है तो प्रमोटर बायर्स ही बायर्स हैं, सेलर आए नहीं। कोई बहुत अच्छी कंपनी तो होगा, बट काफी बार ऐसा होगा कि लोग बोलेंगे यार पैसा मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि कहीं और डालूंगा, हाँ तो एक हाँ, नेचुरल वो एक माइंडसेट है, रहेगा। हाँ वो सी रिटेलर का माइंडसेट वो अलग ही होता है, हाँ ठीक। हाँ हाँ, तो सी क्या है, मुंगीपा जैसी कंपनी में लोग को मालूम है कि ये कंपनी अच्छी है, बट जब आपको हम्म। सी इन सब कंपनी में गारंटी थोड़ी ना ये अच्छी है, किसी का खराब रिजल्ट आ गया तो क्या होगा। तो मुंगीपा के केस में तो सबको मालूम था, टेक ओवर सब हुआ है, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो चलो ठीक है उसमें तो बायर सर्किट लगा रहा। हर कंपनी में ऐसा हाँ नहीं होगा, लोग निकालेंगे पैसा, पक्का निकालेंगे, क्या मैं पैसा क्यों फंसा हाँ कर रखूं। और आप 2-2% का सर्किट ले लो, 2% का मतलब है 8 कि 10% महीने में बढ़ जाएगा, तो आप सारे सर्किट भी लगा दो तो वो भी बहुत स्लो ग्रोथ है ना, 10 मतलब जिसको मल्टी बैगर की आदत है वो बोलेगा भाई 10% मिल रहा है मुझे, इससे अच्छा मैं पैसा हाँ, वो निकालता हूँ नहीं कहीं और बनेगा, डालूंगा। वो नहीं, हाँ वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, आप सही कह रहे हो सर। हाँ तो सर ये बात तो सही है सर। पैसा तो निकलेगा, वो तो आप मानकर चलो कि यार मैं खुद सोच रहा हूँ पैसा निकालने का, दोनों बाकी भी सोच ही रहे होंगे ना, तो हाँ, क्योंकि अभी हाँ आपने लाइन ही ऐसा बोला ना कि कैमटेक में मैं फंस गया, तो एक हाँ अगर किसी को पेशेंस है तो वो भी एक बार लूज कर देता है कि ठीक है मेरा पैसा क्यों एग्जैक्टली फंसा के रखूं। एग्जैक्ट सी मेरा क्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 महीना वेट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ठीक है, मेरा बहुत छोटा पोर्शन लगा है पोर्टफोलियो का, इट विल नॉट मैटर टू मी दैट मच, बट किसी का बाई चांस बड़ा लगा हुआ है वो तो पक्का निकालेगा ना कि मैं बड़ा पैसा क्यों फंसाऊं, तो मैं तो होल्ड कर जाऊंगा, बट आई एम श्योर बाकी लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। और जब तुम्हें पता है कि बाकी लोग ऐसा नहीं सोचेंगे तो इट्स सॉर्ट ऑफ वो ना कि भाई सब लोग ये करेंगे पैसा निकालने का, कुछ मुझे लगता है लगेंगे लोअर सर्किट्स, अभी दिखेगा हाँ मंडे क्या लगेंगे, होता है। हाँ लगेंगे, तो लगेंगे सर। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन, तो एनीवे देखते हैं सर क्या होता है। मैं तो हाँ कई ऐसे शेयर का नाम नहीं लेना चाहता, पर कुछ ऐसे शेयर हैं जो GSM 4 में ऑलरेडी हैं, और 1-1.5 महीने से है उसके अंदर वॉल्यूम, मतलब प्राइस मूवमेंट भी केवल 1 महीने में एक बार होता है, और वो केवल बायर्स ही बायर्स होते हैं, सेलर होते ही नहीं है। कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ट्रेड हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मली ऐसे शेयर हैं मेरे नॉलेज में जो GSM 4 में है, मंडे टू मंडे ट्रेड होते हैं, उसके अंदर बायर्स एविजय भाई खड़े मुझे रहते ना आपका हैं। आवाज नहीं आ रहा है, एक बार नीचे जाके बोलेंगे, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है आवाज भैया? नहीं नहीं एक्चुअली ये ना कनेक्शन टूट गया आपका, मेरा वो कभी कभार हो जाता है इसमें। चलिए किसी और से बात कर एक लीजिए, मैं मिनट एक म्यूट करता मिनट हूँ, मैं म्यूट करता हूँ। हमको हेलो। सुनाई दे रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, आपका टूट गया है। हाँ मेरा आदित्य टूट आदित्य ए जी, सचिन बोल रहा हूँ। बोलिए सचिन जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मेरा वन क्वेश्चन है कि ये जो NSL में लिस्टेड कंपनी रहेगी उसको ये एप्लीकेबल नहीं है? एनएससी पे भी है ना, मेन बोर्ड पे छोटी कंपनी है तो दोनों जगह एप्लीकेबल है, बट तो एनएससी में छोटी कंपनियां कम होती हैं तो इसलिए मेजोरिटी बीएससी पे लगेगा। समझो एनएससी पे मेन बोर्ड पे स्मॉल कैप्स बहुत कम होती हैं, एनएससी में क्या होता है टिपिकली मेन बोर्ड पे बड़ी कंपनियां ही जाती हैं, तो एनएससी में स्मॉल कैप मेन बोर्ड बहुत कम है जो 500 करोड़ से छोटी हैं, इसलिए मेजोरिटी बीएससी की कंपनियां फंसी हैं, एनएससी में इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, सो प्लस ये ASM 4 सब एप्लीकेबल है, तो आई थिंक सो दिस दिस रिटेलर्स विल गेट आउट, वो तो निकल ही जाएंगे, ये रुकने वाले में से नहीं रहेंगे ना, बिकॉज द अल्टीमेटली द कंपनी इज गुड बट रिटेलर्स विल गेट स्टक मोर। एग्जैक्टली
सी मेन बात है वो ट्रेडिंग आपका वो है ना कि आपका पैसा फंस रहा है, तो जो जिसका ज्यादा फंड लगा है वो तो निकालने का कोशिश करेगा, जिसका फंड ही बहुत बड़ा है और छोटा फंड लगा है वो तो वेट कर जाएगा। तो अल्टीमेटली उसमें रिटेलर्स विल गेट स्टक, और वो तो एग्जिट ही करना करेंगे, वो तो हाथ ही नहीं लगाएंगे फिर। जो आई थिंक सो जो बड़े रहेंगे वो ही, दे नो द एग्जैक्टली वेल। But एग्जैक्टली this doesn't get discussed with the SEBI doesn't discuss with anyone before implementing. Directly ये लोग implement करते हैं। सो आई एम नॉट, मतलब वो तो उन्होंने अपना डिस्कशन जो किया होगा, बट आई मतलब वही इससे नुकसान हो रहा है लोगों का, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट स्टक। आई एम श्योर आज सुबह भी सब लोग चेक कर रहे थे भाई हमारी सिक्योरिटी कहाँ गायब हो गई, तो मुझे हाँ, भी कॉल आ गया कि मेरी सिक्योरिटी गायब हो गई, मेरी सिक्योरिटी गायब हो गई। तो मैंने भी देखा कि ज्यादा ही था। हाँ, तो वही केमटेक जैसे सबका गायब हो गया जिसके पास भी था। ऐसे वो जो भी 36 है, द प्रॉब्लम है वो 36 से छोटी लिस्ट है, वो 283 बड़ी लिस्ट है, वो 283 में से जो जाएगा। और आपने देखा होगा सारी 283 में आज सब नीचे जा रही थी, क्योंकि सब में वो था कि भाई वो ऊपर गई तो वो स्टेज 2 में चली जाएंगी, तो लोग वहीं पे बेच रहे थे कि भाई ये ऊपर गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो डर भी है ना स्टेज 2 का लोग को, तो वही है। Something has to be done. I think so. I don't know, why brokers and nobody has given any suggestions to the SEBI. They उनका भी एक टाइप का यही होगा ना कि they will also not get earn money, or people will not trade to the small cap also. So then there will be an issue to them also. But nobody has raised any query before the implementation also. हाँ, I आई थिंक ये इम्प्लीमेंटेशन सडन ही था ना। सी ईएसएम स्टेज 2 किसी ने देखा नहीं, आज पहली बार दिखा। हम जून 2 को अनाउंसमेंट आया था, तो जून 2 को भी हमने देखा था और हमने आई थिंक 12th जून को लिखा भी था इसके बारे में। बट इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन आज देखा ना कि भाई ये तो फंस गया, ये तो रुक गई इनकी ट्रेडिंग। तो अभी ऑब्वियसली आधे कुछ लोग तो स्टार्टिंग में पैनिक हो गए कि क्या हुआ, फिर लोग को समझ गया कि ईएसएम 2 है, तो लोग नॉर्मल हो गए। अभी मंडे हमें दिखेगा कि क्या होता है सिक्योरिटीज में। तो इतना तो पक्का पंप एंड डंप तो रुक गया, बट जेन्युइन वाले भी फंस गए। आई थिंक दैट्स द होल प्रॉब्लम। So investor association, somebody can take, if somebody has a lead or something. I think so everyone can write that will make an impact. At least some PE or some turnover, at least some criteria has to be bifurcated between these companies. Because already ASM है, GSM है, इतने तो procedural ये issues है. Now this has come into a new picture. And I doubt कि ये SME में applicable नहीं होगा. Sometime before down the line it will applicable to SME also somewhere. नहीं तो अभी क्या होगा कि पंप एंड डंप 500 करोड़ के ऊपर शिफ्ट होगा। सी पंप एंड डंप में ऐसा तो नहीं है ना कि वो छोटी छोटी कंपनी को करना आसान होता है, बट इसका ये मतलब कि बड़ी हो नहीं सकती। ये टीटीएमएल में भी हुआ था, टीटीएमएल भी चला, बीसीजी भी रीजनेबली बड़ी कंपनी थी, वो भी चली। तो वो तो देखो जिसने करना है वो तो करेगा, उसमें छोटी कंपनी में रुक जाएगा, बट ठीक है थोड़ी बड़ी में चालू हो जाएगा और एसएमई में चालू होगा। एसएमई में क्राइटेरिया कैन बी रिड्यूस आल्सो, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग तो फिर, अगर इतना ही कर रहे तो। एसएमई में ये क्या है कि आई थिंक उन्होंने एसएमई पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं किया क्योंकि एसएमई में ऑलरेडी लॉट साइज है, सो दे फील कि एसएमई में रिटेलर प्रेजेंस है ही नहीं, तो इसलिए जो खेल रहा है एसएमई में वो ऑलरेडी पैसे वाला है, तो उसको क्यों प्रोटेक्ट करे। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई एसएमई पे ये फिल्टर नहीं है और मेन बोर्ड स्मॉल कैप में है। अदरवाइज आइडली तो सेम लॉजिक वहां पे भी लगना चाहिए, बट वहां पे लॉट साइज इसलिए में भी नहीं लगाया है। तो मतलब टाइमिंग में वो शायद देख रहे होंगे इम्प्लीमेंट करने के पहले, इम्प्लीमेंटेशन फॉर द नॉर्मल स्टॉक्स कैसे हो रहा है, फिर एसएमई पे आ सकते हैं लोग। Because I doubt कि ये only will be applicable to only the normal stock. This will not be applicable to SME. I really feel on that way because the things will change. अगर एक बार ये implement हो गया and it will continue तो बहुत difficult होने वाला है। So ये तो पहले से ही चल रहा है ना सर, ये तो कोई बात थोड़ी हुआ है। एंड बाय द वे किसी और के कोई काउंटर थॉट्स है तो बता सकते हैं, मतलब मैंने अपने थॉट्स शेयर किए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा, बिकॉज़ ये तो किसी ने देखा नहीं, ये सब ऐसे ही मार रहे हैं। तो जीएसएम 4 एएसएम अगर तो काफी पहले विजय भाई पॉइंटेड अ काउंटर थॉट राइट कि एसजी फिनसर्व जैसी कंपनी तो फिर भी बायर पे लगी रही थी, बट आई थिंक वहां पे इन्फॉर्मेशन काफी था कि भाई टेक ओवर हो रहा है। हर कंपनी के साथ ऐसा नहीं होगा ना, और ये नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ते जाने वाले हैं ईएसएम 2 में। तो किसी के काउंटर थॉट्स है तो वो भी शेयर कर सकता है, मे बी इफ आई एम not thinking the right way or maybe I'm making some error. हेलो आदित्य, yeah, please आदित्य, बोलिए। कंपनी नॉर्मल टू एसएमई मूव हो Hello? सकती है क्या? कंपनी नॉर्मल स्टॉक से एसएमई में मूव हो सकती है क्या? हेलो हेलो नहीं, it cannot be moved from SME ना, it cannot be moved, उल्टा नहीं हो सकता है। SME stock can go to the normal exchange, but the normal exchange से SME में नहीं जा सकता। अच्छा। That is not the criteria because SME is the smaller companies which get bigger. उल्टा है ना? या लेकिन ये एक कैम स्टॉक है, उसका तो मार्केट कैपिटल सिर्फ लेस देन 100 करोड़ से। Market cap is not the criteria. Now the SME listing is for the small companies which are smaller and which can get bigger. So they have a route to list at the companies. वो तो पहले से already होगा, इसलिए होगा।
I don't know about the company details, but that is the criteria. आदित्य सर ये पहली बार तो हुआ नहीं सर, ये पहले से अभी हो रहा थोड़ा है तो एक्चुअली मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा है, बस एक मिनट थोड़ा मैं मैं आदित्य सर विजय बोल रहा हूँ। Yeah. आदित्य सर विजय कौन बोल बोल रहा रहा है हूँ। अभी? आदित्य सर विजय बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहली बार तो हुआ नहीं, तो पहले से हो रहा है ये। आज इन्होंने एक साथ 36 वन सेकंड भाई इन्होंने आज एक साथ काफी कंपनियां डाल दी, बाकी हो तो ये पहले से रहना सर ESM वगैरह को। Hello, am I audible? Yes, या you यू आर are. ऑडिबल या Thank you. Hi Aditya, I think after a long time I have joined one of your space. हे बेंजी, हाँ बोलिए। So I have been hearing, a lot of these things. ESM जिस दिन वो आया था notification, that day also I saw it, but I thought हाँ कुछ तो impact आएगा, but I didn't know कि इतना severe जो है ना, कि बहुत strict guidelines होगी और इतनी जल्दी इतनी सारी कंपनी आ जाएगी, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। कुछ जो मुझे ऐसे ही दिखाई देते हैं, जैसे आप में से कई लोगों ने ये सजेस्ट किया कि पी का क्राइटेरिया एक रख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि सेबी या कोई एक्सचेंज कभी पी के ऊपर काम करेगा कि भाई इतना पी के नीचे इधर डालेंगे या उधर डालेंगे। द रीजन इज पी इज लाइक इट कैन चेंज टुमारो। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हटा दो तो उसका पी बहुत ज्यादा होगा, बट लास्ट क्वार्टर का डाल दो तो सडनली बहुत कम हो जाएगा, और उसी को अगर फॉरवर्ड पी में देख लेंगे तो और भी बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10-12 के आसपास होगा। सो आई डोंट थिंक कि पीई वगैरह पे वो काम करेंगे, बट व्हाट दे कैन डू इज टर्नओवर पे तो काम कर ही सकते हैं कि भाई कोई कंपनी जिसका सेल्स ही नहीं है, अब सेल्स ही नहीं है तो फिर उसमें हो क्या रहा है, देयर इज नो बिजनेस राइट। अब ये हो सकता है कि वो टेक ओवर हो, अब टेक ओवर है तो फिर वो अगर जा रहा है जीएसएम और पता नहीं कौन कौन से, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, क्योंकि वो कुछ दिन बाद बाहर निकल आएगा, टेक ओवर के बाद क्लैरिटी तो आ जाएगी कि ये बिजनेस करेंगे, ये ऐसा होना है, जो भी होना है राइट। बट एक नॉर्मल बिजनेस जो टर्न अराउंड हो रहा है या कुछ छोटा मोटा, उतना बहुत बड़ा नहीं, जैसे वो एसजी फिन का बहुत बार जो है डिस्कशन हुआ, बट अब इंडिया में कितनी कंपनी है जो एसजी फिन टाइप का कैरेक्टरिस्टिक आपको पहले कभी दिखाओ कि कोई एकदम नहीं दिखता है। दिस इज लाइक रेयरेस्ट ऑफ रेयर। यू शुड नॉट बी मेकिंग एग्जांपल आउट ऑफ एक्सेप्शंस, दे आर ट्रूली एक्सेप्शंस। उसकी बात करने कोई पॉइंट नहीं है ना। और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप रूल लगा रहे हो तो देयर हैज टू बी सम बेसिस कि भाई अच्छा ये इसलिए कर रहे हैं हम, और फिर उसको ये भी तो स्टडी करना है कि वो रूल लगाने के बाद कॉस्ट क्या है उसकी। आर यू इम्पैक्टिंग टू मेनी थिंग्स टू मच विच यू डोंट वांट टू, बिकॉज उसका जो बेनिफिट है वो नहीं है उतना, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। या बस आएंगे बस लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए राइट। अभी वो 36 कंपनियां हैं, 200-250 और आ जाएंगी अभी अगले कुछ दिन में, है ना। अब वो अगर आप ऐसे कर दोगे तो बहुत सारा पैसा है वो फंस जाएगा लोगों का, फिर लोग कहेंगे यार इधर लगाने से फायदा नहीं है, तो you are going to hurt investors even more. So your intent might be, well, क्या बताएं अब, लेकिन intent से कुछ नहीं होगा ना। Ultimately your implementation is such that you're driving down the liquidity. You want opposite of it, right? अभी आज जैसे मोतीलाल ओसवाल ने अनाउंस किया कि पहला इंडिया का माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे, जिसमें वो फिर भी बड़ी कंपनी होगी, शायद NSE 500 के बाहर जो 250 कंपनी है उसका बनाएंगे। बट द पॉइंट इज वो सब चीजें लिक्विडिटी इंक्रीज करेंगे, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। यहाँ जो सेबी कर रही है उससे उल्टा होगा। सो आई डोंट थिंक दिस इज लाइक रियली दैट ग्रेट आइडिया। हाँ आप ये कह सकते हो डिस्क्लोजर बढ़ा दें, कोई कंपनी सिर्फ सर्किट पे बात करी 2 महीने से, व्हाट इज द रीजन? यू मे डिसाइड सम रूल्स कि भाई कोई एक स्टॉक है, अगर वो लगातार एक साइड के सर्किट पे चलता है, लेट्स से 7 days, आई मीन 5 days और 10 days और 15, व्हाटएवर कुड बी द रूल, यू हैव टू एक्सप्लेन टू द एक्सचेंज कि कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है जो ऑलरेडी पब्लिक में नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते तब भी ठीक है कि भाई 15 दिन से सर्किट लग रहा है, क्यों लग रहा है, यू टेल कि कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, या अगर नया है तो बता दो उसको, चाहे अपर सर्किट हो चाहे लोअर सर्किट हो। बट exchanges should have no business and SEBI should have no business telling कि कौन सा स्टॉक कौन सा दिन ट्रेड होगा और कितना वो 2% मूव करेगा। व्हाट इज दिस? बिकॉज दैट वे यू आर हिंडरिंग मार्केट फोर्सेस राइट। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? अगर आप मार्केट में यही नहीं अलाउ कर रहे हो कि स्टॉक कहाँ मूव करे कब मूव करे, तो फिर मीनिंग ही क्या है उस बात का? वैसे बहुत सारे स्टॉक है, मैंने बहुत सारे आपके भी स्टॉक्स के कवरेज में देखा है कि वो है ना बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया क्वार्टर का, सडनली उनका पी 5-7 हो गया, 8 है ना, ऐसा फॉरवर्ड पी। अब वैसा कंपनी इफ इट इज ग्रोइंग वेल, अब वो हो सकता है री-रेट हो जाए 15-20-25 पी हो सकता है। तो अगर आप 5-8 पी वाले को 20-25 पी ले जा रहे हो 3-6 महीने में, दैट मीन्स 3x to 4x। अब वो 3x to 4x अब मूव नहीं हो सकता। लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस रूल इज दिस? अच्छा एक और प्रॉब्लम है, माइक्रो कैप बाय डेफिनेशन इज मोर रिस्क, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है।
It's like, you know, कि IPL के Correct. नीचे हम player खोज रहे हैं. No doubt there will be some talent, right? Because at some point in time, Sachin Tendulkar was very young, Kohli was very young, Shubman Gill is young, so many people are young, right? But वो बाद में बड़े हो जाएंगे. लेकिन वहां पे मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है. बाहर से यंग लोग आएंगे जो बेचारे गुम हो जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली, राइट? सेम इज ट्रू फॉर मार्केट. सो इफ आई एम टेकिंग मोर रिस्क, बाइंग स्मॉलर कंपनीज, माइक्रो कैप्स, व्हाई आई एम नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द अपसाइड, बट आई हैव फुल डाउनसाइड. So if something is going to go down, I'm going to lose money anyway. But if something is going to go up, SEBI will come and it will be like, you know what, ESM में जाइए आप, सिर्फ 2% बढ़ेंगे आप मंडे को, तो महीने में आप 10% बढ़ेंगे. What is this? This doesn't make sense, right? So somebody should, I mean, I will not write all this, but I'm speaking, I don't know whether it is recorded or not, but some of you can just collate like, you know, logical thoughts. I'm not saying कि exactly क्या लिखना है, but you get the conceptual, क्या ना कि भाई घटने पे हमें पिटाई होगी, बढ़ने पे आप हमें बढ़ने नहीं करो. What is, अब फिर कौन रिस्क लेगा माइक्रो कैप में जाके? एंड स्टैटिस्टिकली एवरीबडी नोज कि माइक्रो कैप्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट है. सो यू नो दीस वर सम थॉट्स. Definitely. See, I completely agree. This will drive away liquidity. Liquidity तो निकलेगी. ये तो आप मानकर चलो कि कोई कितना भी बोल ले, कोई कितना भी पेशेंट हो, इवेंचुअली सबसे बड़ा प्लेयर तो रिटेल होता है और रिटेल पेशेंस नहीं दिखाएगा, तो लिक्विडिटी तो निकलने वाली है, वो तो मानकर चलो. दूसरा ये है कि आई डू अग्री, अगर पी क्राइटेरिया नहीं लगाना तो टर्नओवर लगा दो. कोई एक लगना चाहिए कि यार अगर कंपनी डिसेंट है, कंपनी का ग्रोथ है, तो उसको पनिश नहीं होना चाहिए ना. अगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट एक लेवल से बड़ा है, खाली टर्नओवर है, खाली कंपनी है कि भाई रेवेन्यू 0 है, रेवेन्यू 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो आप लगा दो उस पे क्राइटेरिया. पी बहुत हाई है तो लगा दो, बट ब्लैंकेट क्राइटेरिया लगाना इज नॉट अ ग्रेट थिंग बिकॉज इट विल ड्राइव अवे लिक्विडिटी एंड दैट एट अ टाइम जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई बुल मार्केट स्टार्ट हुआ है, बड़ा बुल मार्केट है. आज खुद में बैठ के वहाँ वो कंपनी हंट कर रहा था जहाँ पे जिनकी मार्केट का 300 करोड़ से ज्यादा है, तो आई थिंक वो तो लिक्विडिटी तो हर्ट होगी. आई डू स्ट्रांगली फील कि यार समवन शुड, मतलब if there is some journalist right on the call, please do come up because it will really help, and we would want to share more thoughts in detail with you. आप एक बार पूरा हमसे समझ लीजिए and please do share on your channel because it will impact a lot of people. अभी तो 36 कंपनियां हैं, इम्पैक्ट फील नहीं हो रहा. कल को जब वो 300 कंपनियां होंगी तो इम्पैक्ट हम सबको फील होगा बिकॉज हम सब बोलेंगे यार हमारा पैसा फंस रहा है, तो और पैसा मूव नहीं कर रहा है, और मतलब ऑब्वियसली द इंटेंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन माइक्रो कैप्स के हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे. तो अगर अपसाइड हमारी कैप हो रही है, डाउन साइड में कोई कैप नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है. खैर डाउन साइड में से लिमिट हो जाएगा, इसमें सब कुछ लिमिट हो जाएगा, तो पैसा वहीं का वहीं रह जाएगा. नहीं तो वही है एक्चुअली डाउन साइड लिमिट, वो थ्योरेटिकली ऐसा फील हो रहा है कि लिमिट हो जाएगा, बट द पॉइंट इज डाउन साइड में वो एक साथ नहीं होगा ना कि सिर्फ लोअर सर्किट जाएंगे, वो 6 महीने में वैल्यू गिरेगी उसकी, ठीक है. बट जब आप अपसाइड की बात करते हो तो ट्रिगर चाहिए ना कोई अच्छा. अब ट्रिगर आ गया, नाउ दे आर नॉट अलाउइंग यू टू गो अप, और फिर जब वो फिर क्या करें फिर उसका, है ना, इट विल किल द, यू नो, बिलो 300 करोड़ मार्केट जो भी है, तो उसका क्या मीनिंग है अगर आप नीचे से ऊपर आने ही नहीं दे रहे हो किसी को. मतलब वो 300 करोड़ वाला है, वेट करे अब 3 साल के लिए कि वो 1000 करोड़ तब हो पाएगा. व्हाट इज दिस, व्हाई शुड देयर बी सच? हाँ एग्जैक्टली, इवन आई एग्री. मतलब वो तो बेसिकली जो 50 करोड़ की कंपनी है उसको बहुत वेट सारी करना पड़ेगा कि कि पिछले 3 साल में वो पता नहीं 1000 गुना, 100 गुना, 50 गुना, 20 गुना हो गई. मतलब उसमें जेन्युइनली बहुत अच्छी चीज, जैसे वो एक्सप्रो इंडिया हो गया, राइट, GRM ओवरसीज हो गया, सो मेनी कंपनीज दे डिड वेरी वेल क्योंकि उनके नंबर्स अच्छे हो रहे थे, टेलविंड एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ दे सेइंग यू जस्ट आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट. व्हाट इज दिस, व्हाई वुड यू डू दैट, है ना. हाँ, आप ये कहो कि डिस्क्लोजर हम बढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई अगर आपका सर्किट हिलाएगा स्टॉक तो यू हैव टू कीप एक्सप्लेनिंग, यू नो, एवरी फ्यू डेज जो भी आप रूल बनाना चाहो. सो आई एम ऑल फॉर डिस्क्लोजर्स, आई एम ऑल फॉर बैनिंग कंपनी. तो अगर आपको लगता है यार ये कंपनी फ्रॉड है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेस इज डिफंक्ट, देयर इज नो बिजनेस बट द स्टॉक इज स्टिल हिटिंग ओनली सर्किट्स, यू मे जस्ट डिलिस्ट इट. आई डोंट केयर, व्हाई, बिकॉज़ देयर इज नो बिजनेस, व्हाई वुड आई केयर, राइट. बट द पॉइंट इज यू शुड नॉट बी मेकिंग एवरीबडी एल्स सफर. दैट इज द होल पॉइंट. एक नॉर्मल बिजनेस नॉर्मली ग्रो कर रहा है, ठीक ठाक कुछ कर रहा है, अचानक से कुछ टेलविंड आया है, उसका नंबर अच्छा आया, अच्छा करना चाहिए स्टॉक, नहीं आप बोल रहे हो नहीं करना चाहिए. ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल टाइप की चीज नहीं है. और ये बात सही है, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है. सो यू हैव टू मेक नॉइजेस, ट्वीट, a lot of tweets, है ना, डालो कुछ, हैशटैग बना लो, आई डोंट नो, यू नो, लाइक वो करो. हाँ कुछ आई थिंक अगर सारे लोग ऑन द कॉल की डालें कि यार मतलब प्लीज रीलुक ESM2, if everyone on the call puts that and we make it हाँ हैशटैग, राइट, कि भाई हैशटैग वो करते हैं तो एटलीस्ट मे बी समवन विल सॉर्ट ऑफ चेक करे. तो फिर उसमें मीडिया वाले दिल कवर इट, है ना, बिकॉज़ दिल सी कि अच्छा बहुत सारा रिस्पांस है, और जब मीडिया वाले कवर करेंगे somebody will listen, because see nobody is your, like, you know, truly well wisher anywhere, right.
The point is to listen to you only when you make noises. तो भाई वही कर लो फिर और क्या करेगा, right? हाँ तो एक मैं ट्वीट डाल देता हूँ, अगर सब उस पे कमेंट मतलब उसी पे हैशटैग प्लीज वो कि भाई एक ही उस पे सारा वो हो जाए कि प्लीज रीलुक या प्लीज रिकंसिडर ESM2 because it will reduce liquidity in stocks. सब लोग वो लिख दे, maybe someone takes a note, right? At least we can try. हाँ बाकी कोई जब मीडिया में है तो they can also help out. But I'm just posting it. If everyone can sort of comment on the same or use the same hashtag everywhere, I think that will be helpful. तो ये कर देते हैं, at least कुछ तो try करते हैं. Hello, I'm Yeah, audible. yeah, Sir, yeah, Bhaiya ji, this is Ram. yeah. Actually, sorry for critical about our system. We live in a system which cares for bigger people and doesn't care for smaller people. This move of ESM is just to destroy the micro cap investor, retail investor. When we are sensing some positive turnaround in micro cap stocks, after a long period of dormant, many companies are reporting good numbers now. But the problem now, the SEBI regulators don't do manual things, seeing the balance sheet fundamental, they never study the fundamentals. Just by doing some random algorithm, they are banning the stocks. Already they are having a cruel mechanism of GSM, where when it is getting suspended on another day, the holding will become zero, and we are unable to even see the quote also in our app. See, one pacemaking company which reported a good number last month, it has been banned. Very unique business they are having. It has a lot of potential to become a mid cap to micro cap company. Mid cap company. So, what is the use of introducing ESM? Already they are having a cruel mechanism of GSM. See, if my SME also growing now, I am sure that they will come up with FSM, another name called FSM, to ban the SME stocks also. They are allowing a lot of IPOs. When it is growing now, they will do something to destroy the innocent retail investors. See, the ultimate mechanism they should adopt now, if they are skeptical about some business now, they should study the fundamentals of the stock, whether they are filing correct complaints with every filing. If the balance sheet is good, then if it is not finding them good, then they can ban. See, lot of good companies where promoters are increasing stake, the balance sheet is growing nicely, they are infusing funds, doing capex, that also brought into GSM stage. This is what I feel. See, if you want to safeguard the investor, no, make the margin 200, 300. If the innocent retailer wanted to buy 1,000 rupees stock, make the margin 3,000. No. This kind of I don't moves. think these are correct ways. Like why would we pay 3 times for the same stock? Why should we pay that? Like what are they giving us? Why should we pay 3 times? Like 100% it makes sense. Why would they want us to pay? Anyway, I think let us not criticize the system. I'm sure उनका intent तो सही है. So it's a good thing that they are doing. The intent is right. वो implementation is obviously hurting all of us. Intent is I think good. Let us try to sort of make it constructive, right? कि I get it कि some things will not, it is not affecting us well, but let us make it constructive. Let us try to make sure कि हमारा voice वहाँ तक पहुँचे. Right. And if someone is there on the call who can take that voice right to the regulators, मैंने तो लिख दिया है. We can all write this down कि भाई please reconsider ESM stage 2 because it will impact liquidity and पूरा सी वो सारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी. वो बेचारा प्रमोटर जो इतना मेहनत करता है 30-50 करोड़ की कंपनी का, वो क्यों करेगा ना? उसका फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो आपने खत्म ही कर दिया. तो आप पूरा आप फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव ग्रोथ